نصرت خان صاحب نے قوالی کو ماڈرن کیا، اس میں فیوژن لائے اور بین الاقوامی بنا دیا اور نئی نسل تک پہنچایا۔ خان صاحب نے بلایا تو میں نے تو جانے، کہنے لگے یہ گانا بنایا تھا، تو میں نے کہا ہنس کے منہ سے اچھا لگے گا۔ تو دیکھو وہ عظیم لوگ، اتنے بڑے لوگ جب میرے جیسے ادنے کو یاد کرتے، جس کا کوئی گرانے سے میں کوئی بھی سنگر نہیں ہے۔ موسیقی میں بالکل ہٹ کے میوزک تھا۔ بالی ووڈ سے تو بہت آگے کے آدمی بن چکے تھے، جب تک وہ بالی ووڈ پہنچے وہ ہالی ووڈ میں کام کر چکے تھے اپنا۔ تو یہ سمجھ لیں ایک چیز بالی ووڈ کو ایک تحفہ دیا تھا خان صاحب نے کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے۔ آسکر وننگ میوزک ڈائریکٹر اللہ رکھا رحمان نے استاد نصرت کی قوالیاں سن کر اسلام قبول کیا۔ اس عظیم واقعے کی تفصیل اے آر رحمان خود بتائیں گے۔ 1996 میں اے آر رحمان جو استاد نصرت کو اپنے روحانی پیشوا اور گرو مانتے ہیں، لاہور آئے۔ طاہر سرور میر کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ وہ استاد نصرت فتح علی خان کی قوالیاں سن کر مسلمان ہوئے۔ For me, according to Islam, there's two kind of music. One music which creates devotion, which reminds us of God, and each note should remind us of God. Another type of music is which creates human worldly nature, right? So Nusrat Sahib's music is the first. 1996 میں جب وندے ماترم البم کے لیے اے آر رحمان لاہور آئے تو انہوں نے مجھے انٹرویو میں بتایا کہ وہ جو اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں وہ استاد نصرت فتح علی خان کی قوالیاں اور اس میں جو روحانیت ہے، جو اللہ سے لو ہے، وہ انیشلی جو ہے اسلام کی طرف راغب ہونے کی وہ باعث بنے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے وقت ملا اور انہوں نے مجھے اپنے دستے شفقت سے نوازا اور مجھے سکھایا۔ آپ سب لوگوں کا پیار ہی ہے جس کی وجہ سے وہ آج بھی موجود ہیں، and he is going to be here for coming generations and generations۔ فتح علی خان کے فن کے حوالے سے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں یہاں اپنا اور ان کا رشتہ بیان کروں گا کہ خان صاحب سے میرا رشتہ کیا تھا۔ استاد نصرت فتح علی خان بڑے فنکار تو تھے لیکن وہ ایک درویش انسان تھے۔ میرا ان سے بہت ہی برادرانہ اور شفقت والا رشتہ تھا، وہ بہت ہی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی استاد فرخ الدین فتح علی خان، جنہیں ہم پیار سے میوزک ورڈ میں فرخی خان صاحب بھی کہا جاتا تھا، استاد راحت فتح علی خان کے والد محترم، ان سے بھی میرا جو ہے دوستی تھی اور محبت تھی۔ اور نصرت فتح علی خان صاحب سے الگ رشتہ تھا، ان سے میری ایک الگ بیٹھک تھی اور محبت تھی، اور بہت ہم جو ہے وہ جب ہم بیٹھتے تھے تو میوزک کی باتیں، جوکس، لطیفے۔ اور ان کے بعد راحت فتح علی خان ہمارے بھائی اور ہمارے دوست، ان سے میری الگ دوستی تھی۔ ہم عمر بھی تھے، راحت فتح علی خان صاحب مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن مجھ سے میرے ساتھ ان کا بھی بہت ہی محبت والا رشتہ ہمیشہ رہا ہے۔ اچھا، اس فیملی کے ساتھ ایک حاجی اقبال نقیبی جو ہیں استاد فتح علی خان مبارک علی خان کے شاگرد تھے، اور یہ آپ یوں کہیے کہ استاد نصرت فتح علی خان کو ورثے میں ملے تھے۔ ان کے ساتھ حاجی اقبال نقیبی صاحب سے ہماری الگ نشستیں تھیں، ان کی ذرا اور ایک مست سی محفل ہوتی تھی، اور ہم ان کے جو ہے لاہور میں مستقل جو ہے وہ ممبر ہوتے تھے۔ تو یہ تو ان جو ہے اس گھرانے سے میرا رشتہ رہا۔ استاد نصرت فتح علی خان، استاد فرخی خان صاحب اور راحت بھائی، اور ان کے ساتھ حاجی اقبال نقیبی، اس گھرانے کے 4 کریکٹر، اور میری ان چاروں سے محبت تھی۔ استاد نصرت فتح علی خان جو سے میڈیا اور پریس سے متعلق جو ہے اکثر جو ہے مشورے بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے بذریعہ حاجی اقبال نقیبی استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا پیغام ملا کہ وہ بہت پریشان ہیں اور فوراً مجھے یاد کر رہے ہیں کہ میں ان سے آؤں اور ملوں۔ اس وقت وہ
अभी नए नए शिफ्ट हुए थे यहाँ मॉडल टाउन लाहौर 84C मॉडल टाउन। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से, और उनका एक ख्वाब था, ड्रीम था कि वो लाहौर में जब फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट हो तो मॉडल टाउन में उनका घर हो। तो यहाँ 84C मॉडल टाउन में उन्होंने मुझे खान साहब ने बुलाया। तो जब मैं उस घर में एंटर हुआ तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ ये बल्लू खान, राशिद खान जो सैक्सोफोन प्लेयर हैं, अयूब खावर और साजिद हुसैन चक्कू वो भी वहाँ मौजूद थे, और एक हमारे दोस्त हैं अफजल भट्ट, वो भी वहाँ थे। और खान साहब ने मुझे देखा तो मुझसे अलग थोड़ा बैठ गए। वहाँ कुछ एल्बम का काम हो रहा था उनके यहाँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि एक मीडिया ग्रुप उनका नाम लेके अखबार का, कि उन्होंने मुझे मेरे ख़िलाफ़ एक बहुत ही ख़तरनाक मुहिम चलाई है, जिसमें खान साहब ने उन दिनों कवाली की थी एक, जिसकी बोल थे इस्मत तौबा को ठुकराने का मौसम आ गया। तो उस अखबार के फ्रंट पेज पे 4 या 5 कालम की खबर सुर्खी थी कि इस्मत नाउज़ बिल्लाह इस्मत काबा को ठुकराने का मौसम आ गया। हालांकि वो खान साहब और कवाली वो कलाम ही ऐसे है कि इस्मत तौबा को ठुकराने का मौसम आ गया। तो खान साहब ने मुझे अखबार दिखाया और कहा कि ये देखिए, हमारा मुल्क तो जो है, और हमारे मुल्क क्या पूरी दुनिया में काबे के हवाले से मुसलमान जो है बहुत उनका लगाव है, जज्बाती हैं। तो इन्होंने मुझ पे ये बहतान लगा दिया है। तो मैंने वो अखबार देखा तो मैंने खान साहब को मशवरा दिया कि आप इमरान खान को इस कॉन्फ्लिक्ट और तनाज़ा में शामिल करें और खान साहब आपका पैचअप करा देंगे। फिर वो खान साहब को, नुसरत साहब को समझ आ गई कि बिल्कुल ताहिर ठीक कह रहे हैं। सैलूज होटल में, ये जो वापडा हाउस में बेसमेंट में होटल है, वहाँ इमरान खान, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान और कुछ लोग, शायद मियाँ सली भी इसमें साथ थे, और वो मामला क्लियर हो गया। नुसरत फ़तेह अली खान मीडिया के हवाले से या कभी वैसे उन्हें कोई ज़िंदगी में परेशानी हुई और उन्होंने समझा कि ताहिर सुरर मीर को इस मशवरा लेना चाहिए, तो मैं उनके पास हाज़िर हुआ। और मैं इस बात को अपनी इज़्ज़त अफजाई भी समझता था कि इतना बड़ा इंसान और इतना बड़ा आर्टिस्ट मुझे इस काबिल समझता है कि मैं उन्हें कोई मशवरा दे सकूं, उन्हें कोई एडवाइस दे सकूं। तो खान साहब से मेरा रिश्ता बहुत ही मोहब्बत वाला रहा है। खान साहब से जब मेरे ताल्लुकात बढ़े और मेरी दोस्ती हो गई और वो प्यार किया करते थे, उस वक्त जो मेरे जहन में आया कि उस्ताद मुबारक अली फ़तेह अली ख़ान की बरसी के मौके पे एक मुद्दत से फैसलाबाद, लायलपुर, लसूड़ी शाह जो आबाई घर है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का और राहत फ़तेह अली ख़ान का, कि वहाँ ये बरसी मनाई जा रही थी। और वहाँ सब कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े खान साहिबान सालाना जाके वो परफॉर्म करते थे। और ये बड़े सगीर में एक बहुत बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल भी था। ये है कि जैसे हरबल्लभ का मेला बहुत बड़ा एक म्यूज़िक फेस्टिवल है सब कॉन्टिनेंट में, इसी तरह लसूड़ी शाह में उस्ताद मुबारक अली फ़तेह अली ख़ान की बरसी भी बहुत बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल रहा है। तो मैंने खान साहब को मशवरा दिया कि आप ये फेस्टिवल, और मेरे कहने पर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने पहाड़ी बाग़े जिना में एक दफ़ा उस्ताद मुबारक अली फ़तेह अली ख़ान की हिस्ट्री में एक दफ़ा बरसी लाहौर में हुई है और उसका मशवरा मैंने दिया था। वो बात मेरे जहन में ये ख्याल आया और मैंने ये तस्लीम भी किया कि मेरा मशवरा दुरुस्त नहीं था। ये रवायत, ये विरसा, ये फेस्टिवल, ये दिन जो है लायलपुर और फैसलाबाद में ही अच्छा लगता है। और अनफॉर्चुनेटली बाद में वो दिन जो है कुछ हमारे मुल्क में हालात ऐसे हो गए हैं अमन व अमान के, सिक्योरिटी के, शायद राहत फ़तेह अली ख़ान ये दिन और ये रवायत इसलिए वो कायम या कंटिन्यू नहीं रख सके क्योंकि एक बहुत अरसा तो हमारे यहाँ इस तरह पब्लिक फेस्टिवल पर पाबंदी भी रही है। छोटा सा वाक़या मैं आपको और सुनाना चाहूँगा कि 1996 की बात है। मैं ए.आर. रहमान के स्टाइल और म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक रिव्यू कर रहा था और टीवी से एग्ज़िट कर रहा था। मैं वहाँ यावर हयात साहब का इंटरव्यू करने गया था। तो मैंने देखा कि उस्ताद
नुसरत फ़तेह अली खान साहब की गाड़ी एंटर हुई है। तो मैं पीटीवी में फ़र्रुख बशीर साहब का ऑफिस था और मैं वहाँ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ जो है चलते चलते वहाँ पहुँचा। तो मैंने पूछा कि आप ए आर रहमान के हवाले से मुझे बताइए कि आप किस तरह से उसको प्लेस करते हैं और उसकी म्यूज़िक टेक्निक क्या है। तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ए आर रहमान के मतलब बता रहे थे और साथ ही उन्होंने कहा कि परसों आ रहा है। और इस तरह से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने कहा कि जैसे हम कहते हैं कि हाँ वो दही लेने गया और आ रहा है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी खबर थी एज जर्नलिस्ट। मैंने कहा खान साहब परसों ए आर रहमान लाहौर आ रहे हैं। कहते हैं हाँ वो उन्होंने कुछ रिकॉर्ड करना है तो एल्बम के लिए, और वो ख़वातीन हज़रात वो एल्बम थी वंदे मातरम, और उसमें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने 2 आइटम्स उन्हें दिए थे। एक तो था चंदा सूरज लाखों तारे, और दूसरा एक और खान साहब ने उसके लिए देना था कि 2 दिन बाद मैं और हाजी इकबाल नकीबी साहब लाहौर के पुराने एयरपोर्ट पर ए आर रहमान को रिसीव करने गए। तो ए आर रहमान, उनकी वालिदा और शायर थे साथ महबूब, वो तशरीफ़ लाए और हमने उन्हें रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो यहाँ माल रोड में उनका एहतमाम किया गया था पीसी में, और वहाँ भी उनसे ए आर रहमान से बातचीत होती रही। उसके बाद सरगम स्टूडियो में वो ए आर रहमान ने काम किया, और मुझे याद है कि ये 2 से ढाई दिन ए आर रहमान यहाँ लाहौर में रहे थे, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के मेहमान। और मैंने अपनी बेगम से फ़ोन करके छुट्टी ले ली कि भाई मैं ये 2.5 या 3 दिन, जितने दिन ए आर रहमान लाहौर में है, तो मैं घर में नहीं आ सकूँगा। और ए आर रहमान भी बहुत, मैंने देखा कि उनमें भी बहुत जुनून था और बहुत जोश था। वो बहुत कम सोए लाहौर में, और उन्होंने यहाँ वो म्यूज़िक का काम किया, सरगम स्टूडियो में रहे, और उसके बाद जब फारिग हुए ये कहा कि मैंने हाज़री देनी है हज़रत दादा गंज बख्श के मज़ार पे। तो मैं उनके साथ वहाँ गया, और उसके बाद यहाँ से उन्होंने कुछ कैसेट्स ख़रीदी ए आर रहमान ने, वो भी म्यूज़िक पर ही मबनी थी और ज़्यादातर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की कैसेट थी। और उसके बाद यहाँ उन्होंने वाल्टन के करीब मस्जिद में जुमा अदा किया, और उसके बाद लाहौर से दिल्ली वाली फ़्लाइट पे उन्हें बिठा दिया गया। नुसरत खान साहब ने कव्वाली को मॉडर्न किया, उसमें फ्यूजन लाए और बैनुल अक़वामी बना दिया और नई नस्ल तक पहुँचाया। और मैंने ये नोट किया कि ए आर रहमान बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो एक बच्चे हैं और किसी म्यूज़िक लेजेंड के दरबार में, और इस तरह से वो हाज़िर हुए हैं। वो बिल्कुल खान साहब को मुझे याद है, ये हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं साजिद हुसैन शक्कू, ये भी उधर मौजूद थे। नदीम सलामत हमारे दोस्त जो कवाल हैं, और ये भी वहाँ थे। और वो खान साहब से ए आर रहमान कह रहा था कि आप कुछ भी इसमें तान पलटा कर दें, मेरे लिए जो है वो, मैं ये समझ रहा था कि ये इतना एज कंपोज़र इसका इतना बड़ा नाम है, तो ये कुछ बना के खान साहब के लिए लाया होगा। हाँ, वो चंदा सूरज लाखों तारे, उसका एक ट्रैक बड़ा अच्छा बना हुआ था, उस पर वो खान साहब ने मिक्स किया, और बाकी जो तान पलटा था उसमें कोई चीज़ ए आर रहमान ने खान साहब को नहीं बताई। वो खुद ही फिलपति खान साहब जो उसमें मुनासिब समझ रहे थे वो ऐड कर रहे थे। हाँ, 84C मॉडल टोन में ही एक मुलाकात में मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से ये सवाल किया कि खान साहब आपने जितना म्यूज़िक किया है उससे बहुत ज़्यादा सुना है, तो मुझे ये बताइए कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने दुनिया में और कायनात में कॉस्मिक मेलोडियस आवाज़ कौन सी लेबल की है। तो ये सुनकर मुझे आज भी याद है तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की आंखों में आंसू आ गए थे, और उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में सबसे सुरीली आवाज़ जो है, जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने लेबल की, वो शहनशाह गज़ल
मेहदी हसन की आवाज़ है, और ये बताते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। और ये इस इंटरव्यू के बाद याद है कुछ दिनों बाद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान क्रॉमवेल हॉस्पिटल गए, वहाँ से आगे उन्होंने जाना था, अमेरिका जाना था, लेकिन वहाँ उन्हें लिवर सिरोसिस और जिगर का आर्जे के बायस उनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और वो दुनिया से चल बसे। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने एक दफ़ा मुझे कहा कि अपना पासपोर्ट दीजिए, मैं आपको अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। तो ख़वातीनो हज़रात, ये देखिए कि मैंने उनसे इस्तदा की खान साहब से कि आप मुझे अमेरिका की बजाय इसके बाद आपका टूर इंडिया में है, आप मुझे इंडिया ले जाएं। तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, मुझे याद है, उन्होंने कहा कि यार सारी दुनिया तो मैनू कहती है कि अमेरिका लैके जा, और तू ऐसा वाहद बंदा है जिहड़ा अमेरिका नहीं जा रहा मेरे नाल और इंडिया जाना चाहता है। तो मैंने उन्हें फिर खान साहब को बताया कि खान साहब, मैं एक तो साल में मुझे रोज़ रोज़ यानी एक्स पाकिस्तानी लीव 2 बार छुट्टी नहीं मिल सकती, और मैं ये सोचता हूँ, मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब से अर्ज़ की कि मैं अगर अमेरिका जाता हूँ तो वहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैडोना का इंटरव्यू कर सकता हूँ या किसी और आर्टिस्ट का, लेकिन अगर मैं इंडिया जाऊंगा आपके साथ तो फिर मेरे लिए लता मंगेशकर भी हैं, आशा भोसले भी हैं, और अमिताभ बच्चन भी हैं, दिलीप कुमार भी हैं, शाहरुख खान भी हैं, सब। तो मैं अपना आपके साथ ट्रैवल इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ अगर बॉलीवुड जाऊंगा तो मुझे सारा बॉलीवुड जो है मुझे इंटरव्यू करने के लिए, बातचीत करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए अवेलेबल